गलत बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं, चुप करना है, चुप तो करना। मोहम्मद अहमद साहब इनको बताएंगे क्या बात कर रहे हैं? चुप कराओ यार, मोहम्मद अहमद साहब इन्हें थल्ले धरो। बात मुस्लिम कम्युनिटी की हो रही है। ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਤੇ ਬਾਓ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ। ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਹੂੰ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਤੇ ਕੱਢੀ ਜਾਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਸੋ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬਾਓ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਬਰ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਲਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਇਹਨੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਤਾਲ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਐਡਾ ਕੋ ਆਲਮ। ਬਹਰਹਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੇ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਵਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਲੀਮ ਘੱਲੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਘੱਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਉਹ ਕੰਜਰੀਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਆ ਇਹ ਅਸੂਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਜਵਾਬ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਰਕਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਬਿਠਾ ਦਿਆਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦੇਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਫਾ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਬਗੈਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਹਯਾਈ ਹੈ, ਬੇਗੈਰਤੀ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂ ਗਾਲਾਂ ਪੇ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ 506 ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਫਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲੀਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਗਾਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਸਰਕਸ਼ ਲੋਕ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 10 ਹਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਸਲੇ ਬਦਕਾਰਾਂ, ਜ਼ਨਾਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਹਿਸ਼ ਜ਼ਨਾਨਾ, ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਔਰਤਾਂ, ਬਦਕਾਰ ਔਰਤਾਂ, ਕੰਜਰੀਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੁਰਾਦ ਲਏ ਨੇ। ਸਰਕਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਹੈ? ਇਬਨ ਬਗਾ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆ ਜ਼ੈਤਨੀ ਖੁਬਸਨ ਜਾਂ ਇਬਨ ਬਗਾ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਸਾਦੁੱਲਾ ਲੁਧਿਆਨਵੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਪੂ ਤਰਜਮਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਸਲੇ ਬਦਕਾਰਾਂ। ਉਹ ਨਸਲੇ ਬਦਕਾਰਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜ਼ੈਤਨੀ ਖੁਬਸਨ ਆਪਣੀ ਖਬਾਸਤ ਨਾਲ ਬੜੀ ਅਜ਼ੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਗਾਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਫਤਹ ਦਾ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਫ਼ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਲਦੁਲ ਹਰਾਮ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਛੀਆਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਹਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਓ ਔਰ 5 ਹਵਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਦਿਫਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਹਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਦਿਫਾ ਕਰ ਦੇਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ 5 ਹਵਾਲੇ ਲੈ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਕੈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ 5 ਹਵਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦਿਫਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਮੌਜੂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਹਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ? ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਫਸੀਲੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਏ, 5 ਹਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 5 ਹਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਜਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਾਹਿਸ਼ਾ ਔਰਤ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਹੈ, ਗਾਲਾਂ ਪੈ ਕੱਢਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ? ਅਗਰ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਿਓ। ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਜਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਫਾਹਿਸ਼ਾ ਔਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਆਇਨਾ ਕਮਾਲਤ ਇਸਲਾਮ 547 ਸਫਾ, ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਤਹਿਸੀਨ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਫ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਸਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾ ਜ਼ੁਰੀਅਤੁਲ ਬਗਾਇਆ, ਸਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਰੀਅਤੁਲ ਬਗਾਇਆ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? इसमें बुरी बात क्या है? ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਈਏ? ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲਓ। इसमें बुरी बात क्या है? नहीं, एक मिनट बात कर रहे थे। बात कर रहा हूँ नहीं, एक मिनट प्लीज बात कर रहे थे। शहजाद साहब मैं ऊपर या ऊपर ले वो तो लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। चला जाता हूँ। ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ? आप नीचे उतरे, हमें क्यों उतार रहे हैं? ਜਦੋਂ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? नहीं आप ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ।
हुजूर ने किसी को नहीं कहा। ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਯਾਰ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਰਬੜੇ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਓ। ये अंदाजा देखें इसकी, इनकी बातों का, ये नहायत गंदी गुफ्तगू करते हैं, इनको कोई अंदाजा नहीं है कि ये बात क्या कर रहे हैं। ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤਾ ਗਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ। नहीं, मैं कह रहा हूँ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇਤਨੀ पे ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ मौजू है ही ਉਹ नहीं, ਮੌਜੂਦ ਸੇ ਹਟ इधर उधर की ਕੇ बातें मार ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜ਼ਬਾਨ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜ਼ਬਾਨ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਬਈ ਮੌਜੂਦ ਤੋਂ ਹਟ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ, बातें ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਪਰਾਂ, ਲੈ ਜਾਓ, ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਕਰੋ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ। ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਰੁਸ਼ਦੀ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੇ ਬਦਲੇ ਆਜ਼ਾਦ, ਗੁਲਾਮ ਕੇ ਬਦਲੇ ਗੁਲਾਮ, ਔਰਤ ਕੇ ਬਦਲੇ ਔਰਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਗੈਰਤੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੱਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ 5 ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 5 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ 5 ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਮਾਤ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦਿਫਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਜਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਾਹਿਸ਼ਾ ਔਰਤ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਬਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੰਜਰੀ ਦਿਓ ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਫਾਹਿਸ਼ਾ ਔਰਤ ਦੀ ਔਲਾਦੋ ਮਰਜ਼ਾਈਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਚਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰਾਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਹਿਸ਼ਾ ਔਰਤ ਦੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਲੀਮਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਫਤਹ ਦਾ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵਲਦੁਲ ਹਰਾਮ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਰਚਾ ਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਜ ਕਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਜ ਨਾ ਕਵੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਲਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਜਲਸੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੌਲਵੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਬਗੈਰਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰਕਤ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੰਜਰੀਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ 5 ਹਵਾਲੇ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਲੈਣਾ, 5 ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਫਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਸਮਝਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਰੁਸ਼ਦੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਆਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰੀ ਸਤਹ ਤੇ ਆਵੋ, ਤੁਸੀਂ 5 ਹਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ 5 ਹਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੋਈ ਦੋਨੋਂ ਮੁਕਰਰ ਕਰਕੇ ਵਕਤ ਮੁਕਰਰ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਓ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਹੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਅਗਰ 5 ਹਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ, ਕਿਸ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਆਖਿਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, 4 ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਨੂੰ ਵਲਦੁਲ ਹਰਾਮ, ਵਲਦੁਲ ਜ਼ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕੰਜਰੀਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਫਾਹਿਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਦਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਕਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਖੰਜ਼ੀਰ ਆ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉल्लाह ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ वो इतनी पेशगोइयों को सही होता नहीं देखता, कुत्ते की तरह वाऊ 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 करता है। एजाज़े अहमदी च लफज लिखे ने, कुत्ते की तरह वाऊ 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 करता है। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਮਾਊ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਈਏ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ 5 ਹਵਾਲੇ, 5.5 ਹਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਈਸਾ ਔਰ ਦਾਊਦ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਕਰਾਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਵਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਨਤ ਪਵਾਈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ, ਬਹਰਹਾਲ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ 5 ਹਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਫਾ ਕਰਨਾ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ,
ਤੇ 5 ਹਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਫਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ YouTube ਤੇ ਚਲਾ ਦੇਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹਿਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਮਸਲਾ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਉਹ 5 ਹਵਾਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਜਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਹਾ, ਜ਼ੁਰੀਅਤੁਲ ਬਗਾਇਆ ਕਿਹਾ, ਫਾਹਿਸ਼ਾ ਔਰਤ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ? ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਦਿਫਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ, ਮੈਂ ਦਿਫਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਿਫਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਗੈਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿਫਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਬਗੈਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਗੈਰਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਇਦ ਬਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਜ਼ੀਮ ਬੱਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਰਬਵੇ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੇ ਕੋਈ ਖਲੋ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚਨਾਬ ਨਗਰ ਥਾਣੇ ਜਾਈਏ, ਆਖੀਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ, 506 ਦਾ FIR। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ FIR ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਹਾਂ, ਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕਿਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕੀ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਖੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਦਫਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ? ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਅਬਰਾਡ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਦਿੰਦੇ। ਬਗੈਰਤੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇਜਾਰਾਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਔਰ ਤਾਕਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰਾ ਮੌਕਫ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਈਨੀ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਖਤਲਾਫ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗਲੀ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲੀ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਆਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਤਹਿਸੀਨ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਕੰਜਰੀਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਤਹ ਦਾ ਕਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵਲਦੁਲ ਹਰਾਮ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਛਾਪ ਰਹੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਰਜ਼ਾ ਬਰੇਲਵੀ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਫਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਠੀਕ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਛਪ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਇਹੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸੀਅਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੌਰੀ ਡੰਡਾ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਗੈਰਤੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ ਰਜ਼ਾ ਬਰੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਕੰਜਰੀਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੁਣ ਤੇ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਵਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ 5 ਹਵਾਲੇ ਕਹਿ ਤੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਜਿਹਨੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਬੂਸ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਇਸ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਦਾਵਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਜ਼ੁਰੀਅਤੁਲ ਬਗਾਇਆ। ਲਿਆਓ ਕਰੋ ਪੇਸ਼, ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੱਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। 5 ਹਵਾਲੇ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦਿਫਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਿਲਾਫੇ ਕੁਰਾਨ, ਖਿਲਾਫੇ ਸ਼ਰਾਫਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਤਹਾਈ ਬਦ ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਬਾਨ इस्तेमाल, सहाबा के खिलाफ, उम्मुल मोमिनीन के खिलाफ, ठीक है, वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦਿਫਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਛਾਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਅਗਰ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਸਾਡੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਚਲੋ ਮਜ਼ਹਬੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਗੈਰਤੀ
ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਦਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹ ਬਗੈਰਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਬਗੈਰਤੀ ਕਰਨ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਕਰਨ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਗੈਰਤੀ ਕਵੀ ਜਾਓ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਗੈਰਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਆਇਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਪਿਆ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਾਲੀ ਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, क्या ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਨੂੰ ਵਲਦੁਲ ਹਰਾਮ ਕਿਹਾ, ਵਲਦੁਲ ਜ਼ਨਾ ਕਿਹਾ, ਕੁੱਤਾ ਖੰਜ਼ੀਰ ਪਗਿਆੜ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੁਰੀਅਤੁਲ ਬਗਾਇਆ ਨੇ, ਬਦਕਾਰ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕੰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਫਾਹਿਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਬਰਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਜਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦਿਫਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਸਾਹਿਬ 5 ਹਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਗੇ, 5 ਹਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰਨੀ? ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੇਖਨੇ ਆ ਉਹ ਹਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਹਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛਾਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਤੇ ਇਹੀ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਛੱਪਣ, ਸਮਝਾਓ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹ ਪਿਆ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਗਾਲ, ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲਾ, ਕੰਜਰੀਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਦਫਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਤੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜਰੀਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਦਫਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੋਗੇ ਦਫਾ? ਲੈਵਾਂ ਮੈਂ 10 ਹਵਾਲੇ? ਜੀ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਹਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ 5 ਹਵਾਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਛਾਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਾਇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਛਾਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕੀਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੀਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦਫਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਰਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਲੈ ਆਵੋ ਕੋ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹ ਆਖੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਬਰਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਹਿਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ, ਜ਼ੁਰੀਅਤੁਲ ਬਗਾਇਆ ਹੋ। ਇਬਨ ਉਹਨੂੰ ਸਾਦੁੱਲਾ ਲੁਧਿਆਨਵੀ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਐ ਸਾਦੁੱਲਾ ਲੁਧਿਆਨਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਬਨ ਬਗਾਇਤ ਆਪੋ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਲਿਖਿਆ ਨਸਲੇ ਬਦਕਾਰਾਂ। ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਜੀ ਜੀ ਆਮਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕਿਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਬਰਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਦਰਸਿਆਂ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਨ ਨਦੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਤੌਰ ਫਰਦੇ ਵਾਹਦ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਥੇ। ਸੁਣ ਲਓ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਮਸਲਾ ਸੈਯਦ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਸੈਯਦ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਗਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਦ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਜਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਵਾਬਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਿਮਿਟ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਮਾ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਅਲਬੱਤਾ ਗਾਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖਾਮ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ, ਨਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ, ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੌਣ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ? ਉਹਦਾ ਸਵਾਏ ਤੁਹਾਡੇ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਾ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਜਰੀਆਂ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਸਮਝਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਸੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਾਲਮ ਗਲੋਚ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। आ रही है दोनों जी आ रही आ रही है। अब आपका कुछ मौकफ रह तो नहीं गया, कोई बात करने वाली रह तो नहीं गई, मिस तो नहीं हो गई? बात तो रही हो रही, बात नहीं कह रहे जी। वो बरात ये जो अपना ज़फ़रुल्लाह शाह साहब, ये जब इनके हवाले रखेंगे बरेलवी साहब के, रजा खान बरेलवी साहब के, ये बरात का ऐलान नहीं करेंगे। ये आप कह रहे हैं जी हम करते हैं, नहीं करते वो, ठीक है। अब मौलाना साहब बात करें। अच्छा मैं लामा साहब कह रहा हूँ, मैं एडवांस बारात का ऐलान करता हूँ हर उस बंदे से जिसने किसी को, किसी की माँ को, किसी की बहन को, किसी की बेटी को गाली, मैं तो एडवांस बारात का ऐलान करता हूँ। बहुत अच्छी माँ बहन की बेटी की गाली देने की तो शरीयत इजाजत नहीं देती है। आपके मिर्जा साहब ने अलबत्ता लोगों को माँ बहन बेटियों की गालियाँ दी। ठीक है। अच्छा लामा साहब कुछ रह तो नहीं गया कोई, मतलब मतलब मैं चाह रहा हूँ कि आप ना कोई ऐसी बात को, मतलब आप ये ना हो कि कोई बंदा जवाब दे तो फिर आपकी कोई बात रह जाए करने वाली, जो कुछ है वो निकाल लें, कर लें। भट्ट साहब के साथ तो जितनी बात हुई उनका मैंने जवाब दे दिया। अगर भट्ट साहब के बाद कोई और बंदा बात करेगा तो लामहल्ला कोई ऐसी नई बात होगी तो मैं जवाब दूंगा। अगर वही भट्ट साहब वाली बातें तो उनका जवाब मैंने दे दिया। नहीं इसी टॉपिक पे जो मैक्सिमम जो भी करना है ना कि मतलब कोई अगर कोई आगे से भी बात करे तो फिर भी जवाब देने की कोई चीज ना रह जाए, वो वाली बात भी फाइनल। अहमद साहब मैं जो हजरत साहब ने कहा है वो मैं खुद पढ़ के बताऊंगा, हजूर ने खुद इसके बारे में क्या लिखा है वो सारा करके बताऊंगा, और वो आपके लिए जवाब नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपकी जो मैं क्या होगा, मैं आपके लिए जवाब समझ नहीं आई बात। मैं कह रहा हूँ आपके लिए जवाब नहीं होगा। आपकी जो मैं सिचुएशन समझा हूँ, पिछले वैसे तो आपको सालों सुना है मैंने और कुछ अरसे से और ज़्यादा भी ऑब्जर्व किया है, तो मैंने नोट किया है कि कोई मतलब कोई है नहीं, आप जितना मर्जी जो मर्जी बता दो, आपके पास कोई ना कोई उज़र ऐसा मौजूद होता है कि जो कि किसी भी मंतकी नतीजे पे नहीं पहुँच सकते। आपकी हमारी लड़ाई जब तक ज़िंदगी है तब तक रहने वाली है, कोई सोल्यूशन है ही नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी बात कर लें, तो मैं जो न्यूट्रल बंदे होंगे मैं कुछ पढ़ दूंगा, ठीक है, उनके किसी के काम आना हुआ तो आ जाएगा, वरना अदरवाइज खैर है। वरना आपकी बात तो सही है ना, मौका ही रहेगी ना, क्या ख्याल है? गुजारिश ये है कि अगर जितनी बात व्हाट्सएप में वो तो होगी हमारी ख़त्म। अब अगर आप उन बातों की कोई तावील करते हैं, मिर्ज़ा साहब की उन बातों की जिनका मैंने जिक्र किया है, तो लामहला दूसरे को भी जवाब देने का मौका देना चाहिए। अगर आप अपनी तावील में कोई गलती करेंगे, आपने कर ली ये बात, और कोई तवील भी नहीं मतलब कोई कुछ, मैं सिरे से इत्तेफाक नहीं करता, आपकी सिरे से बातें गलत है। आप जब हवाले पढ़ते हैं, बात करते हैं, तो आप पहले चंद लोगों के नाम लेते हैं कि कुछ लोगों को ऐसे ज़ोर ने कहा, फिर आप कहना शुरू कर देते हैं मुझे गालियाँ निकाली और ज़फ़रुल्लाह शाह। अब हालांकि आपका नाम और निशान भी नहीं मौजूद था उस वक़्त जब हजूर ने ये बात की है, या कोई बता थे आपके मतलब बड़ों का भी नाम और निशान नहीं था उस वक़्त, ठीक है, तो आप ज़बरदस्ती उस लाइन में खड़े हो गए। मैं बताता हूँ जो एक मैं बताता हूँ, मैं नहीं समझा रहा कि ये इतनी सादा बात है। लामा साहब उस वक्त मौजूद नहीं थे, पर लामा साहब मैं उससे लाइन से खड़े होना मैं की कहना। अहमद साहब अगर आप मेरी बात सुन लें, अगर आप आईना कमालत इस्लाम का 547 सफ़ा खोलेंगे ना, उसमें जो लफ्ज़ कुल का लिखा हुआ है, सुन तो लें ना, जो कुल का लफ्ज़ लिखा हुआ है ना, उसके अंदर अमर नज़ीर का नाम भी आता है, नजफ का नाम भी आता है, सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह का, सारे मुसलमानों का नाम, क्योंकि हम मिर्ज़ा साहब की किताबों को मोहब्बत की निगाह से नहीं देखते। उनके अंदर कोई मुआरफ नहीं है। तो मुसलमानों का जिक्र हो रहा है, तो इसका मतलब आप क्या बात से मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे तो लिखा है कि मुसलमान इज्जत की नजर से देखते हैं, आप नजर से नहीं देख रहे, तो दैट मींस आप मुसलमान नहीं है। यानी आपकी नजर में जो उन किताबों को आप तहसीन की नजर से नहीं देखते वो मुसलमान भी नहीं है।
आप ये बात हजूर ने जो लिखा है, हजूर ने ये जो लाइन आपने पकड़ी हुई है, इससे पहले हजूर क्या कह रहे हैं कि मैंने बराइन अहमदिया लिखी है, मैंने ये किताब लिखी है, किसके लिए लिखी है? आर्यों के मुकाबला करने के लिए, ईसाइयों का मुकाबला करने के लिए, इन सब के लिए मैं ये किताबें लिखी हैं। और मुसलमान मेरी किताबों को इज्जत की नज़र से देखते हैं वो, और इस बातों को समझने की कोशिश करते हैं, और जो नहीं समझता उसके अंदर कोई खराबी है। ठीक है, अब ये उसके बाद आपने एक लफ्ज़ पकड़ लिया, उस लफ्ज़ को हजूर अपनी ज़िंदगी में बता के जा रहे हैं कि ये मैंने जो कसीदा लिखा है इसमें सरकश इंसान है। बात शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया कि अल्लामा साहब, कोई भी इंसान या किसी भी मज़हब के अंदर कोई इंसान अगर समझता है कि खुदा ताला की तरफ से हिदायत आई है, अल्लाह ताला की बातें आई हैं, और उस अल्लाह की आई हिदायत की जो तकज़ीब करेगा, चाहे वो उसी मज़हब के अंदर से हो चाहे बाहर से हो, वो सरकश इंसान कहलाया जाएगा। हम अहमदी इसको सरकशी के अंदर लेते हैं। आप जो अल्फाज कह रहे हैं हम मानते हैं ना, हजूर ने कहा है, मगर आप कह रहे हैं कि नहीं यही नहीं। अब उसका इलाज मेरे पास नहीं। हाँ, मेरी बात खत्म होने दो, पहली तो बात खत्म होने दो, मुझे बात आपको मौका देता हूँ, आपको खुद पता है, आप एक पढ़े लिखे, आपको पता है कि अरबी के अंदर एक अल्फाज के कई माने, और हमने देखा है एक ही आयत को लेके लोगों के मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं। आपके हमारे दरमियान तवफ़ी के लफ्ज़ को देख लो, आप लोग को पता है कि भाई इसका मतलब मौत भी है, मगर उसके साथ कई मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करके आप कहते हो कि नहीं जी इसी लफ्ज़ का मतलब हो गया जिस्म के साथ ऊपर जाना। अब यही लफ्ज़ ज़ुरियतुल बगाया अरबी लुगात के अंदर वहाँ पे मेंशन है कि सरकशी है, हिदायत से दूर इंसान है, जो अकल से काम नहीं लेता, उनके मानों में भी इस्तेमाल होता है। मगर आप क्या कहते हैं, नहीं असी सारे वो मानी छड़ देने ने, बस ओही गंदा मानी लेना वा जो आपके ज़हन में है। सर इसका इलाज कुछ नहीं है, आप मैं भी क़यामत तक बहस करते रहेंगे ना, क़यामत से मुराद हमारे मरने तक ये मसला वहीं पे खड़ा रहना है। इसलिए मैं कह रहा था आप अपनी मोहकम बात कर जाए, मैं आगे से मैं पढ़ दूंगा, जिसको जो लेना होगा, जो मोती चुनने होंगे चुन लेगा, जिसने गालियां देनी होगी वो गालियां दे देगा। क्या ख्याल है? क्या मौका दे दें मुझे जो बात आपने की है 3 मिनट, मुझे इस पर जवाब कर दे लेने दें। पहली बात तो ये है कि आपने जो सियाक़ो सबाक़ उसका बयान करने की कोशिश की है ना, वो आईना कमालत इस्लाम की तहरीर है जो 1893 में मिर्ज़ा साहब ने लिखी है। इससे पहले ये म्यूट करना ज़रा, इससे पहले मिर्ज़ा साहब की सिर्फ बराइन अहमदिया किताब नहीं है, बराइन अहमदिया तो 1884 में ख़त्म हो गई 4 किताबें। इसके बाद मिर्ज़ा साहब ने वो किताबें लिखी हैं जिसमें ये भी लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम अमल तिरब करके मोइज़े दिखाया करते थे। जो बंदा इसको मोहब्बत और तहसीन की निगाह से नहीं देखता, मिर्ज़ा साहब के बकौल वो ज़ुरियतुल बगाया है। मिर्ज़ा साहब ने अगर तो सिर्फ ये कहा है उस तहरीर में, आप ये साबित कर दें कि मिर्ज़ा साहब ने कहा है कि जो बराइन अहमदिया को मोहब्बत और तहसीन की निगाह से नहीं देखता, मैं अपने आप को एग्जम्प्ट कर लूँगा कि नहीं मिर्ज़ा साहब ने मुझे नहीं कहा। मिर्ज़ा साहब ने सब को कहा है कि जो मेरी किताबों को मोहब्बत और तहसीन की निगाह से नहीं देखता वो ज़ुरियतुल बगाया है। उन किताबों में मैंने आपको कहा ज़ाला व हाम, फ़तह इस्लाम, तज़ीउल मराम, ये सारी किताबें आती हैं। आखिरी बात यह है, आप कहते हैं कि जो अज़ाला, एक मिनट, आखिरी बात यह है कि जो आपने कहा है कि ज़ुरियतुल बगाया का मतलब मिर्ज़ा साहब ने गाली नहीं लिया, कंजरियों की औलाद नहीं लिया, सरकश वो जो खुदा की तलीम को नहीं मानता सरकश है। क्या मैं भी इस माने में कह सकता हूँ कि क्योंकि मेरी नज़र में मिर्ज़ा साहब खुदा की तालीम के ख़िलाफ़ दावा कर रहे हैं, खुदा की तालीम के ख़िलाफ़ किताबें लिख कर गए हैं, खुदा की तालीम के ख़िलाफ़ दावे करके गए हैं, क्या मैं भी मिर्ज़ा साहब को ज़ुरियतुल बगाया कहूँ, लिख कर पोस्टर लगा दूँ जवाब में? इजाज़त है मुझे? मेरी नज़र में अगर ज़ुरियतुल बगाया का ये मानी है तो भी मेरी नज़र में आप सारे और मिर्ज़ा साहब भी उस तालीम के ख़िलाफ़ हैं जो अल्लाह ताला की असल तालीम है, जो कुरान और हदीस की तालीम है। तो क्या मैं भी कहूँ कि ये ज़ुरियतुल बगाया है? जी, आपको बुरा कैसे ज़्यादा बढ़ के आप कहते हैं, ये तो कुछ रह नहीं जाता, जो कुछ आप लोग करते हैं वो तो कुछ रह नहीं जाती पीछे बात। वहाँ मैंने तो इतना कह रहा हूँ कि मलफूज़ात के अंदर हजूर ने लिखा है कि मैंने जो कसीदा लिखा है उसके अंदर जो बगाया है ये सरकश इंसान के मानी में, और हम भी एक कसीदा नहीं है, आईना कमालत इस्लाम में कसीदा नहीं, वो कसीदा होगा इजाज़े अहमदी वाला, मेरा ख्याल अंजाम आतम वाला। अंजाम आतम में तो मिर्ज़ा साहब ने खुद नस्ल बदकारां तर्जमा किया हुआ उसका, सादुल्लाह आज़ैतनी खुबसन फलस्त बिसादिकिन इल्लम तमुत बिलखिज़्य या इब्ने बगा। इसके नीचे खुद देखें, जामे आतम 282 सफ़ा, इसके नीचे मिर्ज़ा साहब ने लिखा हुआ है कि तूने मुझे अजियत दी है अपनी खबासत से, ए नस्ल बदकारां, सादुल्लाह लुधियानवी को लिखा हुआ है। इसका तर्जमा जाके हकीकतुल वही में छुपा ही दिया है।
है। इसी कसीदे को हकीकतुल वही में लिखा, मगर सुन तो लें। इसी को हुजूर ने मलफूजात में सरकश इंसान कहा है ना, ये जो नस्लें अच्छा मलफूजात में जाके इसका मानी बदल दिया। एक मिनट अहमद साहब, जब आपने अंजाम आथम लिखी तो उस कसीदे में अपने हाथ से लिखा नस्ल बदकारा, तो मलफूजात में मानी बदल दिया खुद अपनी बात का। साहब मैं कह रहा हूँ कि यार मैं बिजी होने लगा, माजरत शाह साहब आगे वो बात करेंगे, मैं बिजी होने लगा, मैं उतरने लगा। बात करनी है, मैं तो सिर्फ आपको मैं सिर्फ बता रहा हूँ, जहाँ कहीं भी लिखा है ना कोई इस तरह से मतलब कह नहीं सकते बिल्कुल हराम पे मेरा से कहता है के माने में किसी के माने नहीं माने, अब ये हमारी लड़ाई कभी भी खत्म नहीं है। साहब आपकी समझ बिल्कुल नहीं आ रही, मैंने इसी को आपकी समझ नहीं आ रही अहमद साहब। अच्छा, इनकी समझ नहीं आ रही और वैसे भी समझ नहीं आ रही, जो दलाइल है उसकी भी समझ नहीं आ रही। शाह साहब ऑनेस्टली मुझे भी आपकी समझ नहीं आती, आपने अमेरिका को ट्रंप से मिला दिया और अल्लाह ताला हिदायत दे आपको क्या नबी को ट्रंप से नहीं मिला। आप झूठ बोल रहे हैं, काबिली जायजा जो है आप झूठ बोल रहे हैं, रजाई से बाहर है, रजाई से मोबाइल निकाल के बाहर। ये अहमद साहब ये ना प्रोपेगेंडा जो अभी आप करने लगे ना, बराए मेहरबानी है ना करें। उसके मुकाबले उन्होंने सिर्फ एग्जांपल दी थी, प्रोपेगेंडा के मुकाबले नहीं कर रहा हूं, गलत एग्जांपल थी। आप नजर भाई ये गलत एग्जांपल थी। देखो ना, मेरी बात अपना मौलवी मेंबर पे खड़े होने की वजह से खामोश तो ना, नबी को ट्रंप के साथ मिला देना और यहाँ पे किसी को शातिमियत नजर नहीं आएगी, और किसी बंदे ने सवाल की रंग में अल्फाज थोड़े से डिफरेंट। हाँ जी, ये अभी आपने जो करना है ना प्रोपेगेंडा आप कर सकते हैं शाह साहब के खिलाफ। आपकी इस बात के ऊपर नहीं, मेरी बात सुनिए, आपकी इस बात के ऊपर सिर्फ और सिर्फ जमाते अहमदिया के लोग एतबार करेंगे। ये बात मेरे सामने हुई है, उन्होंने कहा कि अगर एक स्टेटस मतलब आप दुनिया की उन्होंने मिसाल दिया कि अगर एक गलत की है बात, आपसे ये कह नहीं क्या गलत था, बात गलत थी, क्या गलत था, क्या गलत था? सिर्फ इसलिए कि जी मौलवी है, पगड़ी बांधी हुई है, दाढ़ी रखी हुई है और कुरान की पगड़ी तो देखो ना, पगड़ी तो मिर्जा साहब ने भी बांधी हुई थी, दाढ़ी। वो बात तो सुनो ना, बात गलत नहीं थी, बात तो सुनो ना, पगड़ी तो मिर्जा साहब नहीं बकवास कर रहा है, बकवास कर रहा है, तो झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। आप ठंडे हो जाओ, ठंडे हो जाओ, ठंडे हो जाओ, मतलब कि गल दा अब आप जवाब नहीं है तो तुसी उन्हें इल्जाम लोगे। सीख ले, मैं आलम भी नहीं हूँ, इसको कहते बदमाशी। माइक तो म्यूट करना, अहमद साहब माइक म्यूट कर लो 2 मिनट, मुझे बोलने दे। अच्छा, गुजारिश है कि पगड़ी, अब इनको प्रॉब्लम आलम भी नहीं हूँ और मतलब कंप्यूटर का बंदा हूँ, मगर आज मेरे से एक बात सीखें, शातिमियत नहीं करते यार। आपसे क्या सीख रही है? काबिली जायजा ट्रंप से, बेवकूफ आदमी से पहले मिर्जा साहब को देखो, पहले मिर्जा साहब को निशान तो साबित कर लो ना, फिर मैं शाह साहब और तंजीला बाजी आ गई है, वो बात कर लेते हैं। वालेकुम सलाम। एक एक करके बात करो ताकि दूसरों को समझ भी आए कि क्या बात हो रही है। तंजीला बाजी आप सही कह रहे हैं, पर इन्हीं से कुछ काम सीखा था, इन्हीं पे अप्लाई किया मैंने, पर अभी प्रोपेगेंडा का एक चीज होती है, एक वादे होती है, एक एग्जांपल होती है। जो एग्जांपल उन्होंने दिए दुनियावी लिहाज से डिफरेंस आता है। एक सेकंड, गुजारिश है मैं अर्ज करता हूँ, गुजारिश है जब बंदे के पास अपना मुंह तो बंद कर यार। अच्छा, मेरा मुंह बंद है, बस आपने शातिमियत करनी, हमारे दिलों को तकलीफ नहीं देनी, ठीक है? चलो पहले मिर्जा साहब को कुछ साबित कर लो, फिर आगे बात करना, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह साबित है, आगे करें। नहीं, वो नहीं साबित नहीं है, वो तो गालियां देते हैं। अभी देखो ना, आमिर नजीर साहब ने अभी आपने दिखाया, अभी नहीं किसी को लेना। आमिर नजीर साहब ने आईना, एक दो काफी हैं आप लोग। नहीं आमिर हक भाई को जरा कॉल पे लेना प्लीज प्लीज। अच्छा, आप बात करें। अच्छा, आपको इस पे भरोसा नहीं है शातिम रसूल मूल? इसको यार ये बकवास ना करें तो मेहरबानी होगी, मैं बड़ी यकीन करो बर्दाश्त कर रहा हूँ। एक लिहाज रखें यार,
एक यकीन करें कि इनका स्टैंडर्ड, इनका म्यार, इनका रुतबा आपके मिर्जा मसरूर साहब से कहीं ज्यादा है, मेरी बात सुनो। कहीं ज्यादा। ये सैयद जो बैठे हुए हैं इनका बहुत ज्यादा रुतबा, जो जिस नजर में आप मिर्जा मसरूर साहब को देखते हैं ना, मैं उससे कहीं ऊपर इन सैयद जफरुल्लाह शाह साहब को देखता लेकिन हूं। नजर ये भाई प्लीज सचमुच अब आप बताओ, अगर वो जी। वाकई कह रहे हैं कि नबी को एक ट्रम्प के साथ मिलाना है, एक प्रेसिडेंट के साथ जी। मिलाना है, तो फिर हाँ। ये सही बात है? अभी मेरी ऐसा बात बात सुनेंगे? कही नहीं, ऐसी बात कही नहीं, ये झूठ बोल रहा है। नहीं, आपने कहा है, ये तो मैंने नहीं, भी मैंने सुना नहीं है। कहा। मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ, कर सकता मैं है। अहमद जवाब साहब देता एक मिनट रुक जाओ, खुदा दा मैं ना जी। जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हाँ जी, हूँ। दो प्लीज। गुजारिश ये है, इन्होंने बिल्कुल झूठ बोला। मिर्जा साहब जाकर आप लोग मुल्की कवानीन के अंदर, मैंने मिसाल दी है कि कोई मुल्क भी अलाउ नहीं करेगा। मिसाल देने का मतलब ये नहीं है कि वो उसी तरह हो गया। वहाँ ये है कि एक मुल्क का सरबराह है कि दूसरा कोई जाकर कहे कि वो सरबराह हो गया, तो ये मिसाल उसकी दी गई है। अब आप मिर्जा साहब को कहते हैं, मैंने कहा पाकिस्तान के आइन में इसकी गुंजाइश ही नहीं है, जिस तरह अमेरिका के आइन में गुंजाइश नहीं है कि प्रेसिडेंट एक ही होगा। ये है उसका मिसाल। ना किसी ने मिलाया तो ना किसी ने कोई मिसाल, जहाँ तक मिसाल है कुरान पाक ने मच्छर की मिसाल दी है, तो तकाबुल कत्ल नहीं करवाया गया। वहाँ आइन और कवानीन की बात हुई है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलाउ नहीं करता किसी को, ये बात है। अब ये इनके पास चूंकि दलाल खत्म हो गए, ना कोई दलील की जवाब दलील से दिया जाता है, और फिर बदतमीजी, पहले भी इन्होंने बदमाशी का लफ्ज इस्तेमाल किया जब इनके पास दलील नहीं है कोई। जी, आप तो मुल्की सब आराम से करें, अभी माइक म्यूट करें आपकी बात मुकम्मल। आप इतनी देर बोले, माइक म्यूट करें, आप इतनी देर बोले, मुझे बात करने दे। आमिर नजीर साहब ने, आप माइक म्यूट कर, बदतमीजी नहीं करनी, माइक म्यूट करें। शाह साहब थोड़ा सा ना माइक थोड़ा दूर रखें, आपकी आवाज बड़ी गूंज के आ रही है। हाँ ठीक है ऐसा लग रहा है रसाई की बात कर जी जी, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, ऐसे लग रहा है किसी भी कंबल वगैरह के अंदर से जी कंबल तो मुझे पता है, कंबल तो आप लोग ओढ़ते हैं, मुझे पता है वो सब। हो रही है। तो भाई इंसान, जानवर ना बनो ना, इंसान बनो। रजाई कहाँ से आ गई? जानवर ना बनो। नहीं हूँ, शातिम रसूल मौलवी नहीं, जानवर है, नाम की कमीना इंसान बकवास करता है कभी की है आपने। नहीं, मैंने कत्ल नहीं की, झूठ बोल रहा, बकवास कर रहे थे। चाहिए आपको। अब मिर्जा तो हमारा तल्लक जमात अहमदिया से है, ना शाह साहब का तल्लक है, ठीक है। हमारा मरज़ियत से दूर दूर तक का तल्लक नहीं है, जो इल्जाम आप हम पे। अस्सलाम वालेकुम। यार ये क्या हो रहा है यार? क्यों ऐसी इतनी आराम से बात कर रहे हैं मदम साहब? क्यों ऐसा हो रहा है यार? और उन पे आजमाया, शीशा दिखाया तो मौलवी गुस्सा कर गया। आप सुन रहे थे बात? छोड़ो यार। हाँ मैंने भी थोड़ी सी अभी सुनी है, बीच में मैं गायब हो गया था, काम पे आज नहीं शातिम नजर मैंने उतार दिया ना, मैंने उतार दिया भाई, मैंने उतार दिया। अच्छा मैं नहीं उतारा भाई। अच्छा यार बात यह है कि नीचे हमारे कुछ दोस्त आए हैं, अहमदी दोस्त, उनको ऊपर आने का मौका दिया जाए। अली अकबर साहब आए हैं, और कौन आया है जी? और कौन आया है जी? अच्छा मेरी बात सुनो, वो सिर्फ पढ़ लेते हैं अभी, बाकी जो सुनने वाले थे पढ़े। आइना कमालत इस्लाम में हुजूर ने जो 5 ये एक सेकंड, ये अली अकबर साहब और आमिर हक साहब काफी आपस में करते रहे हैं बातचीत। अली अकबर भाई करनी है गल उत्ते आके? अली अकबर साहब में करते रहे हैं। अली अकबर बुला लो, तुसी बुला लो, मेरे तो नाराज है तो तुम्हारी सुन के शायद। अच्छा नाराज हैं आपसे? अली भाई नाराज ना होए, पता क्या है, या सोशल मीडिया को पता ही है, इसके मिजाज को समझें। आ जाए ऊपर आ जाए, परसों कोई और तमाशा लग जाएगा, लोग उसके पीछे हो जाएंगे। आ जाओ उत्ते आ जाओ ना, अली अकबर साहब उत्ते आओ ना जरा। अच्छा ये जो थी ना आइना कमालत इस्लाम, जो जिल्द 5 का जो 547 पेज पे थी, जो तिलका कुतुबु यंजुरु इलैहा कुल्लू कह रहे थे, कुल्लू मुस्लिमिन का है, तो जी ये मुझे गाली दी है, हालांकि ऐसा नहीं है। वहाँ उसका तर्जमा ये है कि ये वो कुतुब हैं जो हुजूर ने पहले लिखी हैं, जो दूसरे मज़ाहब थे, जिसके अंदर हुजूर ने किताबों का जिक्र किया है कि जैसे मैंने इब्राहिम ने लिखी थी या दूसरी किताबें लिखी हैं, वो ईसाइयों के और आर्यों के रद में लिखी है मैंने। तो हुजूर लिखते हैं कि ये वो कुतुब हैं जिनको हर मुसलमान मोहब्बत और एहसान की नज़र से देखता है।
तो यानी कि जो अक्ल सलीम रखती हैं, जो अच्छे मुसलमान हैं, वो तो इसको इज़्ज़त की निगाह से देखेंगे और इन कुतुब के मारफ से मुस्तफ़ीज़ होता है और मुझे कबूल करता है और मेरी दावत की तस्दीक करता है, सिवाय ज़ुर्रियतुल बगाया के, जिनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर कर दी है, बस वो मुझे कबूल नहीं करते। अब कुरान मजीद में भी दिलों पे मोहर किन को कहा गया हुआ है? वो सरकश इंसान है, बगाया ही लोग हैं वो, ठीक है, जिसको अल्लाह ताला ने और भी बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हुए हैं। तो इसी को मलफूज़ात के अंदर हुजूर ने लिखा है कि ये जो कलाम का पढ़ रहे थे, जो आज तनी खूब सुन, उसका तर्जमा लिखा हुआ है कि यानी खबासत से तूने मुझे एज़ा दी है, बस अगर तू अब रुसवाई से हलाक ना हुआ तो मैं जरा म्यूट करें, ओपन आहिस्ता म्यूट करें जरा, आवाज नहीं आ रही। लामा साहब आपके लिए नहीं था, आपको नई बात लेके आए हैं? नहीं, मैं ये बात समझना चाहता हूँ कि ये जो बात आईना कमालत इस्लाम में लिखी है, इसके बारे में मिर्जा साहब ने मलफूजात में ये बात कही हुई है या टोटली कहा हुआ है कि जहां जहां मैंने, एक मिनट सुन तो लें, क्या मिर्जा साहब ने ये कहा है कि जहां जहां मैंने लफ्ज बगाया का या बगा का इस्तेमाल किया है उससे मुराद सरकश लोग हैं, या सिर्फ इस किताब के लिए या अंजाम आथम वाले कसीदे के लिए, किसके मतलब मिर्जा साहब ने ये बात कही है? वो रेफरेंस पेश करें। अच्छा अल्लामा साहब, ये वाले जो अल्फाज पढ़ के जो माने आपको समझ आ रहे हैं ना, ठीक है, आपको पूरा हक है पूरी खुश दिली के साथ उसको तर्जमा करके अपनी ज़ात के ऊपर लगाना है, तो आपको ये भी पूरी इजाज़त है, आप शौक़ से लगा सकते हैं, ठीक है। पर बीइंग अहमदी हजूर ने जिधर जिधर जहाँ जहाँ भी लिखा है वहाँ पे यही मुराद है कि उनके दिलों पे मोहर है, वो सरकश इंसान हैं, वो हिदायत से दूर हैं, उनमें उनकी जो ज़ाती जो DNA वाला प्रॉब्लम होता है ना कि किसी को हरामी करार दे देना, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं होता। सब लोग अपने पेरेंट्स से पैदा होते हैं, अपने वालिदैन से पैदा होते हैं, और अगर किसी का कुछ है भी तो हमें नहीं पता। अब चूंकि किसी को किसी का पता नहीं होता तो हम इसके मानी जो हैं वो सरकश इंसान में, हिदायत से दूरी में, दिलों की मोहर की दूरी में ही लेते हैं। जहाँ तक रही है बात मलफूज़ात की, तो मलफूज़ात में हजूर ने यही वाले अल्फाज जो लिखे हुए हैं जो आप कह रहे थे ना कि अज़ैतनी खुबसन फलस्तु बिसादिकिन ना, इसका तर्जमा करते हुए ए सरकश इंसान मलफूज़ात जिल्द नंबर 5 के अंदर है। और हम चूँकि हजूर की बात को कहते हैं ना कि इंसान सिर्फ अल्फाज समझता है और लिखने वाला अल्फाज के साथ जज्बात भी लिखता है, तो कोई इंसान अगर किसी को मानता है तो वो उसके जज्बात को भी समझता है। आप सिर्फ अल्फाज पढ़ते हैं, हम जज्बात भी समझते हैं। जिस तरह से बेशुमार ऐसी अहादीस आ जाती हैं जो बड़ी कंट्राडिक्टरी होती हैं, मगर एक मानने वाला उसके सही माने तशरीह उसकी रूह बताता है, ठीक है। मगर आपको मैं पूरा हक देता हूँ, आपने इसका जितना गंदा मतलब लेना है आप लें, आपने अपने ऊपर चस्पा करना है आप अपने ऊपर चस्पा भी कर सकते हैं, मगर ये बहस मेरे जो ना कभी क़यामत तक बहस करी जानी है सर, उसका मैं उससे फेडअप हो चुका हूँ। लामा साहब अभी आपकी बारी। बड़ी मेहरबानी, आप बिल्कुल फेडअप ना हो, इसको छोड़े ना। अगर आप इस बात को तर्क नहीं करना चाहते तो फिर इसके साथ आपको लड़ना पड़ेगा, क़यामत लड़ना पड़ेगा। जब तक अब सोशल मीडिया पर आपको लड़ना पड़ेगा, हाँ इससे किनारा करने सोशल मीडिया से होती बात, लेकिन यहाँ खड़े होंगे तो फिर लामाल आपके सामने ये बात पेश की जाएगी। अब सुने बात, आप कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब ने वो जो अंजाम आतम में सफ़ा 282 पे लिखा हुआ है, आज़ैतनी खुबसन फलस्तु बिसादिकिन इल्लम तमुत बिलखिज़्य या इब्ने बगा, इसका ये मतलब बयान किया है मलफूज़ात में सरकश लोग। मैं कहता हूं कि अंजाम आतम खोलें, वहां पर अगर मिर्जा साहब ने अपने हाथ से इसका मानी नस्ल बदकारा लिखा हुआ है तो हमने मिर्जा साहब की दोनों बातों में से कौन सी बात माननी है? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये हमारा ये मानना है, मेरा ये मानना है कि ये दोनों बातों का मानी यही है, हिदायत से दूर है वो इंसान, वो सरकश है जो अल्लाह ताला की बातों का इनकार कर रहा है, अल्लाह ताला से दुश्मनी कर रहा है। दोनों बातों का यही मानी है। मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं, आपने इतनी लंबी बात की है, आपने मुझे बात ही नहीं पूरी करने दी। पहली बात तो ये है कि मिर्जा साहब ने दो माने लिखे, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि अंजाम आतम में तो सादुल्लाह लुधियानवी का नाम लिखकर बाकायदा लिखा हुआ है, या इब्ने बगा का नीचे तर्जमा लिखा हुआ है नस्ल बदकारा, और बाद में मलफूजात में उन्होंने कह दिया कि इसका मानी है सरकश लोग। अब हमने वो नस्ल बदकारा वाले को नसख समझना है, ये नासख है उसका, वो मनसूख हो गया है, या आपने क्या मतलब दो अलग अलग मानी है ना। नस्ल बदकारा तो सीधा सीधा है बदकार की नस्ल,
और फिर वही नहीं कि बदकार उसकी माँ को कहा, पूरी नस्ल को बदकार करार दे दिया। तो अगर मलफूजात में अलहदा मानी करार दिया है, मेरा तीसरा सवाल ये है कि हकीकतुल वही में यही कसीदा लिखकर उसके नीचे इब्ने बगा का तर्जमा ही नहीं किया, इसको छुपा दिया, वाई, क्यों? प्लीज जवाब दे जी। आई डोंट नो, आज अगर हजूर होते तो हम दोनों हजूर से पूछ लेते कि हजूर आपने यहाँ पे तर्जुमा नहीं किया, मगर अगर हजूर जिंदा होते तो पर मुझे इतना ज़रूर यकीन है पूरा मतलब एक पक्के तरीके से कि हजूर ने बताना यही था कि ये हिदायत से दूर है और ये एक सख्ती के अल्फाज हैं। जिस तरह कोई भी इंसान अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ब्रॉडों पे सुनते हैं, वो जानवरों के बच्चे भी है ना, मतलब ख़ास लफ्ज़ लेके कह देते हैं, हालांकि कोई भी इंसान किसी डॉग का बच्चा नहीं होता। ये एक सख्ती के अल्फाज हैं कि मैं उसकी किसी हरकत से बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, ये कोई अच्छी हरकत नहीं कर रहा। तो इसी तरह हजूर ने यहाँ पे हिदायत से दूरी की बात है, सरकशी की बात है, अल्लाह ताला से दुश्मनी की बात है, ये एक अहमदी समझता है। और आप इस पे ना, जैसे आप कह रहे थे ना कि आपको चले जाना चाहिए, सर मेरी मंशा समझे कहने, मैंने कहा है कि जो जवाब मैंने दे चुका हूँ ना कि एक अहमदी इसके बारे में क्या समझता है, वो अगर आप 10 साल भी आगे मजीद अगर हम जिंदा रहते हैं, हम बहस करेंगे, तो मेरी तरफ से माना यही रहेगा और आपकी तरफ से माना क्या रहेगा, नहीं जी मैंने गाल काट देती, मैंने यह कह देता, वो कह देता। अब मैं इसका इलाज तो मेरे पास नहीं है, मैं नहीं कर सकता। हाँ, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू डिलीवर हो चुके हैं, तो अब कोई न्यूट्रल बंदे जो सुनने वाले होंगे, वो जिसको आपकी बात अच्छी लगेगी वो आपकी बात ले लेगा, जिसको मेरी बात कुछ सेंस करेगी वो मेरी ले लेगा। तो हर इंसान अपना बोझ उठाने वाला अपनी अकल समझ खुद रखता है। क्या ख्याल है अल्लामा साहब, इसमें कोई इख्तलाफ? ये भी बात आपकी नहीं, मैं सिर्फ इतना इसमें इख्तलाफ करूंगा कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर एक दफा आ गया है तो ये बंद तभी हो सकता है कि जब आप और मैं दोनों सोशल मीडिया पे ना हो। लेकिन जब भी हम आमने सामने आएंगे, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा। हाँ, सुनने वाले लोग नए आएंगे, उनको पता नहीं होगा इन बातों का कि मिर्जा साहब ने अपने मुखालिफों को ज़ुरियतुल बगाया लिखा हुआ है, जगह जगह बगाया का तर्जमा फाहिशा औरतें लिखा हुआ है, बाजारी जनान लिखा हुआ है, बाजारी जनानियाँ लिखा हुआ है, बाजारी औरतें लिखा हुआ है, बदकार नस्ल बदकारा लिखा हुआ है, जगह जगह मिर्जा साहब ने लिखा हुआ है। और इसका ये जो आप बता रहे हैं अंजाम आतम वाला, ये पॉइंट ऑफ व्यू मुझे और आपको दोनों को देकर लोगों को बता देना चाहिए कि हाँ, मिर्जा साहब ने अंजाम आतम में इसका मानी नस्ल बदकारा किया, बाद में मलफूजात में जाके ये मानी कर दिया सरकश लोग। हदायत से दूर नहीं, सरकश लोग जो किया वही बयान करे, लेकिन अपने ही मानी को बदल दिया। क्यों बदल दिया? मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने कहा था, मिर्जा साहब क़यामत का दिन होगा, सादुल्लाह लुधियानवी की माँ का हाथ होगा, आपका गिरेबान होगा, क्योंकि सादुल्लाह लुधियानवी ने अगर कसूर किया तो आपका किया, आपको बुरा भला का है, आप उसको कहें, आपने उसकी माँ को बदकार कह दिया। कल क़यामत के दिन आप क्या जवाब देंगे? इस डर से मिर्जा साहब ने बदला, मलफूजात में बदला, हकीकत वही में छुपा ही दिया, तर्जुमा ही नहीं किया। खोल के देख लें, कहीं तो मैं स्कैन लगा देता हूँ। मैं एक बात जरा पूछ लूं। जी जी जी, आप एक ही बात को आमिर भाई कितनी दफा रिपीट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा? जी भाई, एक बात मुझे अच्छी लगी, जितनी दफा अहमद साहब करेंगे, जितनी दफा अहमद साहब, ये तो उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना, मैंने अपना देना, बार बार देंगे। एक बात मुझे अच्छी लगी है अल्लामा साहब की, वो मंतकी तौर पे ठीक भी है। अभी जितनी बात हुई है वो एक लिहाज से तो वाइंड अप हो चुकी हुई है कि एक पॉइंट ऑफ व्यू इनका आ गया हुआ है और मैंने भी दे दिया हुआ है। मगर अल्लामा साहब ने बीच में बड़ी अच्छी बात की कि नए लोग भी आते हैं सुनने के लिए, तो उनको दोबारा भी पता चल सकता है। ये बात सही है, ये बात इनकी मानने वाली है। मिसाल के तौर पे कल बात होती है तो कल दोबारा से मैं अपनी बात रख सकता हूँ कि भाई हाँ भाई, ये इसका ये मतलब नहीं है, ये है। और इन्होंने हजूर ने कहा कि हजूर को क़यामत वाले दिन को किसी ने कोई बात कहा, सर अगर हुआ तो लाजमन बात है हजूर वहाँ पर भी बताएंगे कि नहीं बहन मेरी, ये आपका ही बच्चा है, ये ठीक है, मैंने ये अल्लाह ताला की मुखालफत कर रहा था। तो सरकशी में कहा है, जैसे मैंने अभी मिसाल दी ना कि हम रोज अच्छा कह लेंगे वहां पर कह लेंगे कि ये आपका बच्चा है, मैंने आपको बदकार कहा है, ये कह लेंगे तो लोग बच्चा आपका है इसलिए मैंने आपको बदकार कहा। तो ले, अब उन्होंने भी एक हाइपोथेटिकली बात की ना कि क़यामत वाले दिन को करेगा, इस तरह करेगा, इसका हमें अब नहीं पता होता है कि नहीं होता। और आपकी ईमान है, हमारा ईमान, अहमद साहब हमारा तो ईमान है कि क़यामत के दिन सींगों वाली बकरी को खड़ा किया जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसके सींग नहीं थे उसको इस दुनिया में अगर मारा है, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला कहेगा आज अदल का दिन है, जिसने जिसके साथ ज्यादती किया आज बदला ले लो, वो बदला दिलाया जाएगा। हमारा तो ईमान है, ये बात मैं भी मानता हूँ ना। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कि सपोज अगर आपकी बात ठीक भी है तो उस दिन भी जो फैसला होगा वो ये नीचे एक साफ गाली हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे रहा है। कोई आप में से मॉडरेटर जो हजरत मोहम्मद को मानने वाला हो तो इसको म्यूट कर दे, ये हरामी है मिर्जा साहब के बकौल। नाम इसने अपना यूसुफी लिखा हुआ है, तो सीधी सीधी गाली है, कहीं तो मैं स्क्रीनशॉट लगा देता। नहीं कर दिया। जब भी आप मिर्जा साहब के खिलाफ बात करेंगे ये हजरत मोहम्मद को गाली देंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
फिदा हबीब आली। नहीं, अल्लामा साहब मुझे अल्लाह इन लानतियों से अपनी धरती पाक करे। मुझे नहीं लग रहा था मुसलमान था, तो अल्लाह ताला उसको पकड़े। अल्लाह इस हरामी को, मैं तो कहता कह दे कि ये हरामी है, ये मिर्जा साहब के फतवे के मुताबिक हरामी है। पता है आपको, मिर्जा साहब ने कहा है जो नबी पाक के बारे में इस तरह की बात कहता है ना, उसके हरामी होने में कोई शक ही नहीं है। ये अल्फाज मिर्जा साहब के हैं, कहीं तो मैं लगाता हूँ स्कैन। अब ये देखो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। अब ये जो बंदा होएगा, जो कोई भी होएगा, ये अपने सही पेरेंट्स से ही हुआ होगा, मगर उसकी हरकत उसको हरामी बना गई, है ना। इसी तरह ये तो शायद अल्लाह ताला ने सबब बना दिया है, मगर उस बंदे को मैं भी हरामी कहता हूँ आपके साथ। उसने बहुत बुरे लफ्ज़ कहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, वो हरामी ही है, ठीक है। तो अब ये जो ज़ुरीतुल बगाया है ना, ये भी उसी मानों में है, हालांकि वो शायद हराम का ना हो, मगर शुक्र है मान गए आप, शुक्र है आप मान गए ज़ुर्रियतुल बगाया का मानी हरामी है। बड़ी मेहरबानी। अल्लामा साहब गलत समझे हैं। ये जो आपने भी बोला ना, हजूर ने बोला कि हरामी है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बोलता है, मैं उसको कह रहा हूँ कि ये वाला बंदा हरामी तो था ही, मगर क्या पता वो सही में उसके पेरेंट्स का बिल्कुल जायज़ ताल्लुक ही हो, ठीक है, मगर उसका फेल उसको ये कर गया, हरकत कर गया ना। मैं कह रहा हूँ कि इसी तरह से उस बात को भी, अगर उसके वालिदैन का वो जायज बच्चा भी होगा तो मिर्जा साहब की तरफ से गाली ही शुमार होगी। भले उसने नबी पाक को गाली दी है, जवाब में मिर्जा साहब ने उसको गाली ही दी है ना, हरामी कहा है तो गाली। मैं तो मिर्जा साहब का फतवा कोट कर रहा हूँ कि मिर्जा साहब ऐसे शख्स को हरामी कहते हैं। मैं भी हजूर ने कहा है ऐसे शख्स को हरामी, तो मैं भी कहता हूँ, मगर वो उसकी उस फेल की वजह से, एक बुरे फेल की वजह से बहुत ज़्यादा सख्ती के अल्फाज हैं, ठीक है ना। वो पता नहीं, वो कह रहे हैं कि वाले भी हरामी है। बिल्कुल यार, जो भी अल्लाह के मामूरीन पे कोई किसी किस्म का भी है, हज़रत ईसा पे कोई भौंकेगा तो वो भी हरामी है, हज़रत मूसा पे भौंकेगा वो भी हरामी है, हज़रत मसीह इस्लाम भी मामूर थे अल्लाह की तरफ से, उन पे गंद बोलने वाला भी यही है। इसमें क्या है इस दो मसीह इस्लाम पर भौंकने वाले भी हरामी है ना। अगर सारे अंबिया पर भौंकने वाले आप कह रहे हैं हरामी है, तो जो मसीह इस्लाम पर भौंकता है वो भी हरामी है। कोई भी किस अल्लाह की तरफ से मामूर हो और उसके बारे में कोई गंद बोलेगा, वो अच्छा नहीं करेगा, वो इसी तरह की चीज़ों में फॉल करेगा। मुझे पता है आप किधर जाने लगे हैं, तो वो वाली मेहरबानी करें हज़रत मसीह। मैं कहीं नहीं जाने लगा, मैं क्यों नहीं जाने लगा, मैं सिर्फ पूछने लगा हूँ एक बात कि नूरुल कुरान हिस्सा 2 सफ़ा 444 पे नामी जिल्द है रवानी के, उसमें मिर्जा साहब ने लिखा हुआ है कि जब मसीह इस्लाम को फ़ाहिशा औरत छू रही थी अपने बालों से, तो शहवत ने जुम्बश तो ली होगी। ये गाली तो नहीं है मसीह इस्लाम के लिए? ये बाइबल को पढ़ रहे थे, बाइबल में ये बात नहीं लिखी हुई, बाइबल में शहवत की बात नहीं लिखी हुई कि शहवत ने जुम्बश ली होगी। अल्लामा साहब, मैं अभी ना मैं काम के लिए जा रहा हूँ, जैसे आप बिजी होते ना जॉब के दौरान, मैं भी जॉब पे ही हूँ, तो इसको फिर कभी कोई मसला नहीं, मैं नहीं कहूँगा भाग्य मैं नहीं कहूँगा कोई ऐसा मसला। ठीक है, रिलैक्स होके जाएं, कोई चक्कर नहीं। तो इस तरह तो होता है फिर इस तरह के कामों में। मैं कुछ देर के लिए बिजी होने लगा। अस्सलाम वालेकुम। आलम आ गया, शहजादे कर लेगा मेरे नाल बहुत ये समझा ले। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਆ, ਜ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ जी आमिर साहब, ਓਪਨ ਆਈ ਸਾਹਿਬ, क्या ਜ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਨੂੰ बात है, ਚੁੱਕੋ आप ਥੱਲੇ, ਇਹਦਾ बात ਮੁਕਾਬਲਾ करने ਜ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ की ਕਰ बात ਸਕਦੇ ਨੇ। यार बहुत ਵੱਡਾ ਤੂੰ डिबेटर, मैं ते तो डरना सही गल है। नहीं, मैंने आपसे क्या ऐसा कह दिया कि मैं आपको दूजे फोन ना पता है? मैं दूजे फोन ना ज्वाइन करना, फिर मेरे नाल गल करनी है। इस फोन ना मैं तेरे नाल गल नहीं कर सकता भाई। तो क्या हुआ है? दूजे फोन ना मैं ज्वाइन करना, अगर ज़ाहिद भाई उत्ते आना तो आ जा, नहीं तो मैं दूजे फोन। चले, मैं आपसे बात नहीं करता, मैं मॉडरेटर जो बंदा दूसरे की बात सुनता नहीं, जो बंदा दूसरे की बात सुनता नहीं, बीच में शोर करता है, ला मोहल्ला आपको भी ऊंची आवाज से शोर करना पड़ता है, क्या करे बंदा फिर? तो उसका इलाज मैंने रखा हुआ वो दूसरा फोन, उससे फिर मैं भी शोर कर लेता हूँ। जो कोई बंदा नहीं सुनता मैं भी ऊंची आवाज से शोर कर देता हूँ। ये मैं कह रहा हूँ, और कुछ भी नहीं कर रहा, आपको गाली नहीं दे रहा। तो आगे ज़ाहिद भाई आप करें, ज़ाहिद भाई से बात। मुझे पता है आप कुछ नहीं कहते, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि आपने जो अभी सवाल रखा है वो बड़ा अजीब सा है मेरे नज़दीक, क्योंकि जहाँ बाइबल का आप जिक्र कर रहे हैं, जिसका कोट जो हुजूर ने किया है, वहाँ पर तो यीशु खुदावंद लिखा हुआ है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो लिखा ही नहीं हुआ वहाँ पर, पढ़ के देखे जरा वहाँ पर। अगर यीशु खुदावंद लिखा हुआ है तो फिर और भी बुरी बात है, क्योंकि कुरान कहता है वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, जिनको ये अल्लाह के अलावा मबूद मानते हैं, जिनकी इबादत करते हैं, जिनको पुकारते हैं, उनको गाली ना दो। मिर्जा साहब ने कहा कि जब मसीह को वो फाहिशा औरत छू रही थी अपने बालों से, तो शहवत ने जुम्बश तो ली होगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हाँ, तो ये कोई गाली है? मैं भी कहूँ कि जब मिर्जा साहब को उनकी औरतें दबाती थी, उनकी टांगें दबाती थी,
वो डॉक्टर की बीवी जब डॉक्टर ने दबाती थी तो मिर्जा साहब की शहावत ने जुम्बश तो ली होगी ना, गाली तो नहीं है ना? मुझे लगता है आपने अपने मौलवियों की कभी तकरीरें नहीं सुनी। मैं मौलवियों की बात कर रहा, मैं कह रहा हूँ यही तकरीरों में ये कोई बुरी बात आपको नहीं लगती, मगर हजरत मिर्जा साहब ने अपनी किताब में लिख दी है, वो बुरी बात लगी है आपको। चल शुरू हो जा, चल भाई हम शुरू हो जाओ ना, सुनी जदीद गल। मैंने बात साफ के बारे में की है कि आप मौलवी जो है ये रोजाना यही बातें करते रहते हैं। सुन लो मुल्ला, बात तो कर लेने दो, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपका लाज या जाहिद भाई या मैं दूसरा, मैं कह रहा हूँ की भी सुना करें यार, किसी और की भी। मैं कह रहा हूँ कि अगर मिर्जा साहब के बारे में ये कहा जाए कि डॉक्टर ने जब मिर्जा साहब की टांगें दबाती थी तो मिर्जा साहब की शहावत ने जुम्बश तो ली होगी, बुरी बात तो नहीं है, गाली तो नहीं ना दे रहा मैं मिर्जा साहब को। नहीं, आपने गाली नहीं दी, आपने सिर्फ एक बात बयान की है जो गैर अखलाकी है, वो क्योंकि ऐसे कोई हुआ ही नहीं वाकया। आपने एक अपनी तरफ से बात डॉक्टर ने टांगे नहीं दबाती थी मिर्जा साहब की। डॉक्टर ने टांगे, ठीक है, आपको लगता है? नहीं, मिर्जा साहब ने खुद बयान किया, उनके बेटों ने बयान किया हुआ है। हाँ, 18 साल की जो आप देते हैं वो मुझे पता है सारे, आपको पता नहीं क्या मिर्जा साहब की टांगे नहीं दबाती थी, औरतें टांगे नहीं दबाती थी मिर्जा साहब की? सीरतुल महदी खोलूं मैं? मुझे लगता है आपको कोई बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, अभी आपने कुछ पढ़ा नहीं हुआ। हाँ वाकई सही गल है, कोई भी वाला सही, वो जो हवाले आप देते हैं वो बेबुनियाद हवाले हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि ये अगर या तो हवाला गलत हो, हवाले दे, इनमें से कोई हवाले तो आप देखते तक नहीं है। मैं सारे पढ़े मैंने, मैं कह रहा हूँ कि मैं 960 यूरो की आने की लवाई आपको पढ़ के, आप कोई हवाला इन बातों में से पूछें कि ये बात जो आपने कही है कहाँ लिखी है, मैं हवाला दूंगा इंशाल्लाह। जो मिर्जा साहब ने 444 सफ़ा नामी जिल्द का, कुरान खज़ाइन की नामी जिल्द है, 444 आसानी सफ़ा है, खोल के देखें, मिर्जा साहब ने लिखा हुआ है कि यसू को जब वो औरत छू रही थी अपने बालों से तो फिर शहावत ने क्या क्या बैद है कि शहावत ने जुम्बश ना ली हो, शहावत ने जुम्बश तो ली। मैंने आपसे आपने ये बात 10 दफा कह चुके हैं, अभी 5 मिनट में ये 10 दफा बात आपने दोहरा दी है। आप कितनी दफा मैंने एक सादा साहब को जवाब दे दिया है, 3 दफा तो आपने पढ़ी होगी ना। सादा साहब को जवाब दिया है कि हाँ, ये जो आपने हवाला दिया है बाइबल का, वो बाइबल में कोट हुई बकायदा लिखी हुई है, वो आयत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि ये हमारी आयत है, ये बाइबल में लिखा हुआ है। मैंने जो आपसे अर्ज की है वो किसी मलफूजात में हुजूर की बात नहीं लिखी हुई, आप एक गैर मुअय्यन हवाले देते हैं जो झूठे हैं। कौन सा गैर मुअय्यन हवाला दिया मैंने? जो हवाले आप दे रहे हैं उनकी औरतें जो है हुजूर की टांगे दबाती थी, वो दबाती नहीं थी, कौन सा हवाला है आपके पास? मिर्जा साहब की टांगे औरतें नहीं दबाती थी, रिकॉर्ड कर ले मुझे। मैंने कहा है कि वो मलफूजात में मौजूद ही नहीं है हवाला। सीरतुल महदी में हवाला कि मिर्जा साहब की टांगे दबाती थी। नहीं, अपनी तरफ से जो बातें बनानी है वो बनाते रहे। और यार आप इनकार करें, मैं हवाला दे देता हूँ, इनकार करें कि मिर्जा साहब की टांगे औरतें नहीं दबाती थी। नहीं दबाती थी, एक औरत टांग दबा रही थी, एक औरत सुन लो, एक औरत टांग दबा रही थी तो उसने ना कहा कि आपकी टांगे बहुत सख्त हैं, तो मिर्जा साहब ने कहा तू पावा पकड़िया मंजीदा, उन्हें पावा हाथ च फड़िया सी तो कुटन लगी सी। ये भी सीरतुल महदी में लिखा हुआ है। ये आपकी जो सीरतुल महदी आपकी खत्मे नबूवत वाले लिखी हुई है ना, आप वो पढ़ के सोए थे हैं रात को। हेलो नवा कट्टा खुल गया, खत्मे नबूवत वाले में सीरतुल महदी लिखी है। हाँ, आपको पता है खत्मे बहुत बड़ा आलम, बड़ी बोंगियां मारी हुई है, बहुत बड़ा आलम जो जमाते हैं खत्मे नबूवत वाले बड़ी हुजूर के नाम पे बोंगियां मारी हुई हैं, वो हमें पता है। किसने? कौन सी सीरतुल महदी है? आमिर नज़ीर साहब देखिए, आप जो ये रवायत, ये जो तहरीरात बयान कर रहे हैं, हो सकता है वो ज़ईफ़ हों, या ज़ईफ़ से मुराद ये कि वो जिसने भी लिखे हमें कंफर्म नहीं है 100% कि वो कितनी सही हैं, तो ऐसी चीज़ें ना बयान करें, नहीं तो फिर कोई अगर बयान करेगा वैसे कोई ज़ईफ़ हदीस ज़ईफ़ चीज़ें तो वो भी ठीक नहीं होता। अगर उस पर हमें जाना नहीं चाहिए, हमें जाना नहीं चाहिए। बहुत अच्छा सवाल, आप सुन लें, मेरा जवाब सुन लें। अगर मैं कोई ऐसी बात बयान करूं जिसको जमात अहमदिया ज़ईफ़ करार देती है, फिर आप मुझे कह सकते हैं। हमारे बारे में अगर कोई ऐसी रवायत पेश करे जिस पर हमारे उलमा की तहकीम लगी हुई है कि ये ज़ईफ़ रवायत है, तो वो जानबूझकर आमदन ये हरकत कर रहा है ना। मैंने अर्ज किया है कि अगर ये रवायत मलफूजात में मौजूद है तो बयान करें। मलफूजात में तो सीरतुल महदी की आप नहीं कबूल करते, सीरतुल महदी को डिसऑन करते हैं आप। ओहो, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आपने जो आयत बाइबल की सामने रखी है वो तो उनकी आयत है, वो मौजूद है। अब कोई भी मेरी बात सुन लें, आपने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यसू खुदावंद बनाया है, ये आपका झूठा इल्जाम है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे, ठीक है?
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایسی کوئی بات نہیں کی. حضور نے جو جواب دیا ہے عیسائیوں کو ان کے یسوع خداوند کا دیا ہے کہ یسوع خداوند کے جو کام کرتا تھا آگے جو جواب دیا ہاں جو یسوع جواب دیا وہ خداوند کا مجھے تو بھی یہ پتا کام ہے. ہی تھے. ان کے اور یسوع یسوع خداوند کے جو یسوع کام حضور نے گنوائے ہیں وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی کیے ہی نہیں. اچھا ٹھیک ہے میں نے مان لی بات آپ کی کہ آپ کے مرزا صاحب نے جہاں جہاں یسوع لکھا ہے مراد ان کا وہ یسوع خداوند مسیح یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا. عیسائیوں کا یسوع مراد ہے نا. ہاں جہاں بھی بائبل کا حوالہ دیا ہے وہ یسوع خداوند دیا ہے ان کا. تو وہ کون ہے یسوع؟ یسوع مجھے کیا پتا, انہوں نے تو اپنے پاس سے بنایا ہوا ہے کہ یسوع خداوند وہ اپنے پاس سے بنایا. ٹھیک ہے ہمارے لیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے, قرآن والا وہ تو ایسے کام نہیں کرتے تھے. اچھا ٹھیک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے کام اچھا نہیں یہ کرتے بتانا ٹھیک ہو گیا کہ اپنا شہزاد صاحب یہ بتانا کہ جو تحفہ کیسریہ میں مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ میں یسوع کا ایلچی بن کر اے ملکہ برطانیہ تیرا اقبال بلند ہو, میں یسوع مسیح کا ایلچی تیرے دربار میں بادب با ملاحظہ کھڑا ہوں, وہ کس کے ایلچی مرزا صاحب بنے ہوئے تھے یہ بتانا. وہاں پر تو مسیح لکھا ہوا ہے, یسوع لکھا ہوا ہے. مسیح عیسیٰ ابن مریم تحفہ نے کیسریہ قرآن کریم میں بھی مسیح کو کوٹ کیا ہے. مسیح نام تو قرآن کریم میں بھی کوٹ کیا ہوا ہے. یسوع لکھا ہوا ہے, یسوع تحفہ یسوع لکھا ہوا تحفہ کیسریہ میں, مسیح نہیں لکھا ہوا, یسوع لکھا ہوا, یسوع کا ایلچی. ذرا پڑھے ذرا پھر دوبارہ پڑھے حوالہ. میں اسکین لگا دیتا ہوں یسوع کا ایلچی میرے ڈراپ باکس میں ابھی لگا دیتا ہوں. لگاؤں فبہت الذی کفر. کفر بہت کر زور لیا لگاؤ لوگوں اس کو نے. پھیلانے پہ, وہی میں کہہ رہا ہوں اس کو پھیلانے پہ زور لگاؤ, اس کے بعد ہکے بکے ہو کے بیٹھ جایا کرو کہ اب میں کیا جواب دوں اس کا. جی پڑھی ہوئی ہے, زبانی یاد کی ہوئی ہے. ہاں تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ حضور نے تو اس کو اسلام کی دعوت دی ہے ملکہ کو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام کی دعوت دی ہے کہ عیسائیت کی دعوت دی. میں یہ سوال کر رہا ہوں جس یسوع کا ایلچی عیسائیت کے کون بڑی اسکرین بھائی مجھے بڑی اسکرین اور ٹھہر جا میں تمہیں لگا دینا. میں اللہ جھوٹی سچی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. جھوٹ ہوا, میں جھوٹ بولا تو معافی مانگوں گا سب کے سامنے. ابھی میں لگاتا ہوں یسوع کا ایلچی. ایک منٹ ہولڈ رکھنا ذرا. عامر نذیر صاحب ایک نیچے سے سوال آیا ہے کہ ایک حدیث کے حوالے سے, تو اس پہ بھی اعتراضات کیے جاتے ہیں. وہ صحیح حدیث ہے بخاری کی, تو اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اعتراضات کرنے والے تو اعتراض کریں گے, لیکن آپ اس کا کیا بیان کرتے ہیں کہ وہ مخالفین ہی ہیں جو اسی چیز سے غلط رنگ پکڑتے ہیں. آلدو وہ حدیث صحیح ہے اور اگر ہم چاہیں اس سے ایک بہت اچھا میسج بھی لے سکتے ہیں, لیکن مخالفین اس کا ایک غلط رنگ میں پیش کرتے ہیں. تو آپ اس کو کیسے پھر سمجھیں گے؟ وہ تو ہم ان کو مرتے دم تک یہی کہتے رہیں گے نہیں اس کا مطلب یہ ہے, اس سے اچھا میسج نکل رہا ہے, لیکن سچ اس سے میسج جو دوسرے لے رہے ہیں مخالفین وہ غلط ہی لیں گے. کیا اس کا میسج ہے؟ نہیں وہی میں یہ نیچے علی اکبر صاحب ایک لکھ رہے ہیں حدیث جو کہ آئی تھنک صحیح بخاری کی حدیث ہے, لیکن وہ آپ پڑھ لیں خود ہی. یہ جو بھی جس ٹاپک پہ آپ لوگ بات کر رہے ہیں پتہ نہیں کہ حدیث کیا ہے, یہ کچھ مفہوم یاد ہے آپ کو؟ وہ مفہوماً جو مخالفین تو یہی مفہوم بیان کرتے ہیں نا کہ کیا کہتے ہیں, بڑی اسکرین کرنا اپنا میری بڑی اسکرین کرنا. میں ڈرائیو کر رہا ہوں, میں لگا دیتا ہوں. میں علی اکبر صاحب سے پوچھتا ہوں کون سے نمبر ہے. میں نہیں چاہ رہا کہ ایسے ہی کوئی چیز کہوں کہ لوجہ غلط ہو. لو بھائی دیکھو یہ یسوع کا ایلچی لکھا ہوا ہے, یہ یسوع کا ایلچی لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایلچی لکھا ہوا ہے. یہ آخری دو لائنیں جو ہائی لائٹ کی اس کو پڑھو بلا. حضرت یسوع مسیح. ہاں تو مسیح کون ہے؟ یسوع مسیح کون ہے بتائے نا, وہی ہے کوئی حال نہیں ہے. جس کو وہ یسوع خداوند مسیح کہتے ہیں. یسوع مسیح اور ہے, یسوع مسیح اور ہے, یسوع خداوند اور ہے, خداوند مسیح اور ہے, خداوند اور ہے. حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام جن کا ایک نام مسیح ہے. نہیں تو انہوں نے بھی پتہ لگتا شہزاد صاحب, تو انہوں نے پتہ پہ لگتا بھائی لہندا کدھر ہے چڑھتا کدھر ہے, تو ہڈی ہوگی بس. یہ یسوع مسیح کا ہی ایلچی بن کر جس یسوع مسیح کو گالیاں دیں اور کہا کہ شہوت نے جنبش تو لی ہوگی, اسی یسوع مسیح کا ایلچی بن کر ملکہ برطانیہ کے دربار میں کھڑے تھے. اپنی آنکھوں سے دیکھ.
कोई इनकी जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता, कोई इनका दफा नहीं कर सकता। तो वो जो नीचे कोई बंदा मैसेज कर रहा था कि नबियों को गालियां देने वाला, सारे नबियों को गालियां देने वाला हरामी होता है, ऐसे ही कोई कह रहा था ना। और अहमद साहब ने कहा हाँ बिल्कुल, किसी भी नबी को, किसी भी मामूर मिन अल्लाह को गाली देने वाला वो हरामी होता है। आप सोचें, अल्लाह के सच्चे नबी हैं ईसा अलैहिस्सलाम, उन्हीं को क्रिश्चियन यीशु मसीह कहते हैं। उन्हीं के बारे में लिखा हुआ है कि जब फाहिशा औरत अपने बालों से उनके पाँव को छू रही थी तो शहवत ने जुम्बश तो ली होगी। कौन इन बातों का दफा कर सकता है? लोगों को कहते हैं कि हमें लोग गालियां देते हैं, गालियों से तो ये किताबें भरी हुई है भाई। तो आपको नहीं लगता आमिर हक साहब, ये जो लिख रहे हैं, ये जो लिखी है तहरीर, कि ये क्या ये उस जवाब में तो नहीं है कि ये लोग जो मसीही हैं, ईसाई हैं, जो इतराज़ात करते थे उन हदीस को उठा के, जो कि ऑल्दो उनका मतलब कुछ और निकलता है और वो उसको गलत रंग में पेश करते हैं, कि आपको नहीं लगता ये उसका जवाब दे रहे हैं इसमें कि आप भी गलत समझे हो तो वो इल्ज़ामी जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं? आप क्या कहते हैं इसके बारे में? मैं ये कहता हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम के दौर में नबी पाक की हजब बयान नहीं किया करते थे मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का नबी पाक की हजब नहीं किया करते थे। क्या नबी पाक ने कभी ईसा अलैहिस्सलाम को ये गालियाँ दी हैं कि भाई क्योंकि वो मेरी तौहीन करते हैं तो बदले में मैं ईसा अलैहिस्सलाम को गालियाँ देनी शुरू कर दूँ? कभी कहा ऐसा? सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर ऐसा हो भी कि कोई नबी पाक को गाली दे तो जवाब में ईसा अलैहिस्सलाम को गालियाँ देनी। लेकिन लेकिन आमिर नज़ीर साहब, मैं इसको इस तरह देख रहा हूँ, एट द सेम टाइम मिर्ज़ा साहब अपने आप को कोई नबी के सल्लम की शान और वो जो मर्तबा है वो तो किसी का भी नहीं है, किसी और नबी का भी नहीं है। तो हम अगर उनको ऐसे देखें मिर्ज़ा साहब को कि वो मतलब उनसे काफ़ी एक दर्जे के लिहाज से, वो तो उनके ग़ुलाम के लिहाज से उन्होंने अपने को कहना कि मैं क्या चीज़ उनके आगे, तो वो अगर उसमें कह रहे हैं आके गुस्से में कि ये जवाब दे रहे हैं, तो आप इसको जस्टिफाइबल नहीं समझेंगे? ठीक है, नबी उन्होंने कह दिया, वो भी ज़िली परूसी, लेकिन एक आप इसको ऐसे क्यों नहीं देख रहे? आप इस वक्त क्यों मिला रहे हैं उनको प्रॉफिट सल्लम के साथ? ऑल तो दूसरी चीज़ों में आप कह रहे हैं हम मिलाया करें, लेकिन मतलब वो रसूल उन्होंने तो माफ़ भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। अगर हम उनकी उस पर चलें तो, लेकिन मिर्ज़ा साहब तो उनके वो है ना, उनके आप पैरेलल तो ना खड़ा करें उन्हें, फिर आप पैरेलल खुद ही खड़ा कर रहे हैं, तो उनकी तरह उन्होंने क्यों नहीं जवाब दिया? मेरा ये आप बताएं इसमें मैंने क्या गलत कहा है कुछ? हाँ, मैं बताता हूँ क्या गलत ये है कि अगर ये बात कही थी फतेह मसीह ने अगर नबी अलैहिस्सलाम के बारे में कोई बुरे अल्फाज बोले थे, आप फतेह मसीह की माँ को, बहन को, जिस तरह आपने सादुल्लाह लुधियानवी को गालियाँ दी, उसको भी गालियाँ दे ले। ईसा अलैहिस्सलाम को तो गाली ना दें। मेरा ये इतराज़ है कि आप फतेह मसीह को जो मर्जी कहें कि उसने नबी पाक की तौहीन किया, आप उसको जो मर्जी कि आपने कहा ना हरामी होता है। मैं खुद आपका फतवा कोट करता हूँ, जो नबी पाक की तौहीन करता है वो हरामी होता है। मैं पसंद करता हूँ कि मिर्ज़ा साहब ने बड़ा अच्छी बात कही है, लेकिन दी तो गाली है पर हरामी कहा है। लेकिन आप फतेह मसीह को हरामी कहें, हलाली कहें, आप ईसा अलैहिस्सलाम को तो गाली ना देना। वो तो अल्लाह के सच्चे नबी हैं, वो तो अल्लाह के सच्चे महबूब बंदे हैं, जिनके बारे में कुरान ने वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा कहा है। उनकी तो बड़ी शानें बयान की हैं कुरान ने, उनके बारे में ये अल्फाज, ये तो गाली दिए नबी को। ज्यादा मतलब मैं भी आपको गाली दूं तो बुरा है, इखलाकी लिहाज से बुरा है, आप कहेंगे गालीबाज है। लेकिन अगर मैं नबियों को गाली दूं फिर तो समझ लो ना पीछे कुछ बात ही नहीं गया। तो एक बंदा एक बंदे को गाली देता है तो होती तो वो भी बात इखलाकी है, लेकिन जो नबियों को गाली दे उसने तो सारे बंधन ही तोड़ दिए, सारे रिश्ते नाते ही तोड़ दिए। उसका तो फिर कोई ईमान नहीं, कोई तकवा नहीं, कोई इंसानियत नहीं, वो तो नबियों को गालियां दे रहा है। यहाँ जिस तरह अभी कोई नीचे नबी पाक को गालियां दे रहा था, तो नबियों को गालियां देने की ज़्यादा बड़ी ज़्यादती और ज़्यादा बड़ा जुल्म है, ज़्यादा बड़ी जो है तकलीफ दे बात है। अगर एक बंदा एक बंदे को गाली देता है तो वो भी बुरी बात है, वो तो इखलाकी लिहाज से बुरी बात है। लेकिन नबियों को गाली देकर तो बंदा गया अपना जहन्नम में जाके ठिकाना बना लिया। नबियों को गालियाँ देकर बंदा जाके कहे जी मैंने एक नबी के दफा में दूसरे नबी को गाली दी, कोई सेंस बनती है? एक नबी के दफा में दूसरे नबी को गाली देना, इसकी कोई सेंस बनती है? अच्छा,
اچھا عامر نذیر صاحب، ادھر میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، وہ یہ کہ جو فتح مسیح کی آپ بات کر رہے ہیں وہ یسوع مسیح کہتے تھے نا، وہ تو نبی نہیں مانتے تھے، وہ تو ان کو ایز اے نبی نہیں لیتے تھے نا، وہ تو ایون ان کو، اور جو مرزا صاحب لکھ رہے ہیں وہ ایز اے نبی تو نہیں ان کو کہہ رہے، وہ تو ان کے ایز اے یسوع مسیح کو کہہ رہے ہیں، جو ان کے اکابر تھے، کہ ان کو تاکہ سمجھ آ جائے، شاید انہوں نے جو اعتراضات کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس کے بدلے میں تاکہ اس کو سمجھ آئے کہ یہ جو بات تو کر رہا ہے یہ غلط ہے۔ آپ ایسے اس کو ایسے نہیں آپ سمجھ سکتے، ضروری آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نبی مان کے انہوں نے اعتراض کیا، یہ آپ کیوں کیسے کہاں سے انفر کر رہے ہیں کہ انہوں نے نبی مان اچھا کے؟ ویسے معذرت کے ساتھ میں کافی دیر سے سن رہا ہوں، اوپن آئز بھائی، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو لاجک پیش کی جاتی ہے کہ یسوع جو ہے وہ اور شخصیت ہے، مسیح اور شخصیت ہے، عیسیٰ علیہ السلام اور ہیں، یہ لاجک آپ کو لگتی ہے نہیں کہ بھونڈی سی ایک لاجک پیش کی جاتی ہے؟ اسی طرح جیسے اگر کوئی شخص کہے کہ لاہوری جماعت والے چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو مجدد مانتے ہیں اس لیے، اور جماعت احمدیہ جو ہے ان کو نبی مانتی ہے، اس لیے یہ دو شخصیتیں ہو گئی ہیں۔ اب لاہوری جماعت کے جو مجدد ہیں مرزا قادیانی صاحب، ان کا نام لے کے ان کو کوئی بھی گالی دی جا سکتی ہے اور جماعت احمدیہ اس پہ اعتراض نہیں کر سکتی کیونکہ دو شخصیات ہو گئی ہیں۔ بڑا بھونڈا قسم کا اعتراض ہے یہ۔ ایک ہی شخصیت ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم، ٹھیک ہے، اور ان کو جو ہے وہ کرسچن خدا مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، مسلمان ان کو اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ ایک ہی شخصیت جو ہے اس کو الگ الگ نام دے کے، شہزاد صاحب کافی دیر آپ نے بولا میرا خیال ہے، پہلے مائک آپ لگا لیتے ہیں اور ہینڈ فری اتار دیتے ہیں کان سے، پھر کسی کی سنتے نہیں ہیں، بغیر بریک بولتے ہیں، تو جب کوئی اور بول رہا ہو پھر اس کو سن لیا کریں تھوڑی دیر۔ تو میں اوپن آئی سے بات کر رہا ہوں، تو اوپن آئی صاحب یہ ایک بھونڈے قسم کی جو بات کی جاتی ہے نا، میرا خیال ہے اس کی کوئی لاجک ہے نہیں، بلا وجہ بحث کرنے کے لیے، مطلب بات کو بڑھانے کے لیے یہ بھونڈی ایک لاجک دی جاتی ہے، ورنہ ساری دنیا جانتی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ہی ایک وہ ہستی ہیں جن کو کرسچنز جو ہیں وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں یا خدا کہتے ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ ان کو اللہ کا نبی کہتے ہیں، اور قرآن نے بڑی خوبصورت طریقے سے اس کو جسٹیفائی کر کے دیا ہوا ہے آپ کو کہ یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو خدا کہتے ہیں، خدا کا بیٹا کہتے ہیں، زمین پھٹ جائے، آسمان جو ہے وہ شک ہو جائے، بڑی خوبصورت ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہاں پہ جو ہے ہم اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے گھنٹوں لگا دیتے ہیں صرف اس لیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے ان کی توہین کی ہوئی ہے، بس۔ اچھا، یہ دیکھ لیں کہ یہ ایک ایسی بات کی ہے کہ جس کی قرآن خود مخالفت کر رہا ہے۔ قرآن کریم نے جہاں جہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو کیا ہے کہ وہ عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خود کا بیان تو نہیں ہے۔ کس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی ایسا دعویٰ کیا ہے یا بیان دیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بعد کے لوگوں نے، عیسائیوں نے یہ حرکت کی ہے۔ اب ان کی یہ غلط حرکت کو آپ جو ہے جامہ پہنا دیں کہ جی ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں اس لیے ہم آپ کے خدا کو بھی کچھ نہیں کہیں گے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے خدا کیسے ہو گئے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، وہ تو ان کو خدا ہو ہی نہیں سکتے۔ تو پھر جو ان کے خدا پر جو لعنت ملامت کی ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے، وہ ان کے جھوٹے کریکٹر والے خدا پر کی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اتنی سی بات اگر کوئی سمجھے بندہ تو اس کو قرآن کریم کی لعنت کی ہوئی یہ بات آیت سمجھ آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے عیسائیوں پہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعنت ہو عیسائیوں پر کہ جنہوں نے خدا کا بیٹا بنایا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو بھی پھر نعوذ باللہ الزام دیں کہ اس نے کیوں لعنت ڈالی ہے عیسائیوں پہ۔ تو یہ کام کرنے سے پہلے قرآن کریم خود پڑھ لیں پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے کن بنیادوں پر آپ کو جواب دینے کی اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ صرف ان کا جو جھوٹا انہوں نے کریکٹر خدا کا بنایا ہوا ہے، جس کو یسوع خداوند کہتے ہیں، اور نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیچ میں ڈالا ہوا ہے، جن کا کوئی تعلق ہی نہیں اس خدا سے، ان کو بری قرار دیا ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے کہ یہ جو جھوٹے خدا کا تم تصور دنیا میں لے کر اٹھے ہو، اس پر تو خدا کا نام ڈال رہا قرآن کریم میں۔ تقریر نہ کریں، مان لیا قرآن کریم کی آیت پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ لعنت۔ چلیں اب وہ کان میں وہ لگا لیں تھوڑا سا، وہ آپ کو آواز بھی آئے نا، خالی اسپیکر نہ استعمال کریں، دوسرا بھی دو سینس ہوتے ہیں نا، دوسرا بھی یوز کیا کریں۔ اچھا شہزاد خرم صاحب، اب آپ نے جتنی یہ تقریر کی ہے نا، اس کے جواب میں جو میں سمجھانا ہوں وہ یہ سمجھاؤں
کہ لاہوری جماعت جس مرزا غلام احمد قادیانی کو مجدد مانتی ہے نا، مجھے یہ حق ہے کہ میں جو مرضی میرے منہ میں آئے میں وہ کہہ دوں، اور جماعت احمدیہ اس کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتی، بالکل کیونکہ جھوٹی بات کر رہے ہیں آپ کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہے. جھوٹی بات میں نے کیسے تھوڑی دیر بتاتا پہلے ہوں جھوٹی بات شہزاد کیسے خرم ہے؟ صاحب، میں نے نہیں، تھوڑی میری دیر بات پہلے سنیں. کہا تھا کہ 2 سینس یوز کیا کریں، میری کان بات بھی سنیں، آپ استعمال نے کیا جھوٹی کریں بات کیسے کی ہے؟ میں سننے کے بتا لیے، دیتا ہوں. اگلے تقریر کرنے کے بعد کان بھی استعمال کیا کریں سننے کے میری لیے. بات تو سننے تو میری بات تو مکمل ہونے دینا بھائی. آپ آپ نے کی تو سن بات رہے تھے کر نا لی کافی ہے. دیر سے، یہ جو آپ نے شیطان کی آنکھ سے لمبی تقریر کی آپ کی سن رہے تھے نا، ہمیں بھی تو بولنے دیں نا آپ. شہزاد بھائی ان کو بات پوری کرنے دیں. زاہد بھائی السلام علیکم. انہوں نے بات تو کر لی ہے. وعلیکم السلام احمد بھائی، کیسے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. میں تو صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو کہا ہے نا کہ لاہوری جو ہیں وہ مجدد مانتے ہیں، تو کیا وہ پھر لعنت ملامت کر لیں؟ عرض یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا تو دعویٰ حال ہے انہاں کہ دا میں بندہ مجدد انہاں نال کی گل کرے. میری بات تو سن لیں. ابھی میں آیا ہوں، میں کراتا ہوں پہلے ان کو بات نہیں کرنے نہیں، دیں. میری بات بھی تو سن لیں نا محمد ہاں احمد جی ہاں صاحب. جی کر لیں. حضرت مسیح علیہ السلام کا دعویٰ ہے کہ میں مجدد بھی ہوں. اب اس میں کون سی غلط بات ہے؟ مجدد بھی ہیں، بالکل مانتے ہیں، سب احمدی مانتے ہیں، جماعت احمدیہ بھی مانتی ہے، لاہوری بھی مانتے ہیں کہ مجدد ہیں. ٹھیک ہے. حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کا کوئی دعویٰ نہیں کہ میں خدا ہوں. عیسائیوں نے جو خدا بنایا ہے وہ اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے. قرآن کریم کی پہلے باتیں پڑھ لیں پہلے ساری، کہ قرآن کریم کن بنیادوں پر ان کو غلط قرار دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے لعنت ڈالی ہے ان پر اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنایا ہے انہیں. ٹھیک ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں اگر آپ یہ کہیں کہ لاہوری یہ کہہ دیں وہ کہہ دیں، وہ لاہوری جو مرضی کہتے رہیں، مگر حضرت مسیح علیہ السلام کا خود کا دعویٰ ہے مجدد ہونے کا. ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੈ ਇਸਲਾਮ ਲਾਇਆ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਜਾਲ سننا چاہ رہے ہم تو سننا چاہ رہے کہیں گے آپ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ کو ਮੰਨਿਆ جیسی بھی بغاوت اللہ علیہ کہہ دیا کرو. آپ نے یہ روکا ਜਦੋਂ ہے. ਇਤਰਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ. یار ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕਜ਼ਾਬ ਦਾ ਜਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ آپ چپ ہو یہ نا علیہ السلام ਇੱਕ کہنے ਸਾਹ پر ਤੂੰ 5 ਵਾਰੀ ਲੈ ਇਸਲਾਮ تو بالکل کہیں گے. اس میں کیا اچھا حرج ہے؟ پچھلی بار جس کو کس نے جس کو اتارا یہ کس نے اتارا؟ پرابلم، میری بات سنو زاہد بھائی. شہزاد بھائی ابھی آپ کی بات نا بہت زیادہ لمبی ہو گئی تھی. ٹھیک ہے ابھی زاہد بھائی نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں میری بات ہے. سنو زاہد بھائی. احمد بھائی مجھے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، میں بھی لعنت اللہ علیہ کہہ کے ساتھ میں اپنا نہیں ہو کہہ سکتی، دوں گا. نہیں ہو سکتی بات، نہیں ہو سکتی بات. آپ جا سکتے ہیں. مولانا صاحب کو بھی میں نے اتار کیوں دیا. نہیں ہو سکتی؟ آپ کیوں نہیں ہو سکتی احمد بھائی؟ دیکھیں پھر یہ تو زیادتی ہے نا. دیکھیں ایک بار اگر اس بندے نے کہہ دیا غلطی سے تو ٹھیک ہے، لیکن جب آپ لوگوں کو جواب نہیں آ رہا ہوتا پھر آپ مرزا قادیانی کے صاحب نام لے کے 5 بار پڑھیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کے پاس جواب نہیں ہے. پھر بھاگنے کا آپ لوگوں نے طریقہ یہ ڈھونڈ لیا، نہیں پسند ہے نا، تو بھاگنے کا طریقہ ڈھونڈ لیا نا آپ لوگوں نے. ابھی یہ ٹھیک ہے کہ 5 بار صلاۃ والسلام کہنا شروع کر دو، اگلا بندہ پھر زاہد بھائی جو ہے وہ آپ یہ لعنت اللہ سمجھ علیہ لیں، پھر آپ کو تکلیف ہو. آپ یہ سمجھ لیں اور بالکل بات نہ کریں. ٹھیک ہے. یہ فنڈامنٹل ایک اصول ہے، اس پہ کوئی آرگومنٹ ہے ہی نہیں. اس کا فیصلہ ہوسٹ کرے گا نا، آپ نہیں کر سکتے نا. اس کا فیصلہ ہوسٹ کرے گا نا کہ بات ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. یہ احمد بھائی فیصلہ ہوسٹ کرے گا، آپ نہیں کر سکتے یہ فیصلہ. یہ غلط طریقہ ہے آپ کا کہ آپ جج بن کے خود ہی فیصلہ کر دیں. اس کے اوپر ہوسٹ سے بات ہوئی تھی کہ جب گفتگو ہو رہی ہوگی پھر ہم بھی احتراماً مرزا صاحب کہیں گے، آپ بھی مرزا صاحب کہیں گے. یہ بات ہوسٹ کے ساتھ طے ہوئی تھی تو ہم اس براڈ پہ آ کے گفتگو کرنا شروع ہوئے تھے. یہ پہلے آپ حل کر لیں اس کو. اگر اسی طرح آپ نے کرنا ہے تو پھر اس طرح پھر ہم بھی لعنت اللہ علیہ کہیں گے. نہیں کہیں گے، بات نہیں ہوئے گی. حل کر لیتے ہیں. اوپن آئی بھائی آپ ادھر ہو؟ اوپن آئی بھائی آپ موجود ہو؟ وہ ابھی موجود نہیں ہے. تو زاہد بھائی اگر اب بات کرنی ہے تو وہ ان کو جو پسند ہے جب وہ آ جائیں گے. دیکھیں احمد بھائی مجھے بھی پسند ہے نا کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کو نہ کریں بات، عین حدیث کے مطابق رحمۃ اللہ علیہ کہوں. نہ کریں بات. آپ جا سکتے ہیں. یہ ہوسٹ فیصلہ کرے گا نا، آپ نہیں کر سکتے نا احمد تو پھر صاحب. ہوسٹ، پھر جب تک ہوسٹ نہیں آتا بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے یہ صحیح ہے. چلیں ہوسٹ کا انتظار کر لیتے ہیں، جب آئے گا پھر ہوسٹ بات کا کر لیں. انتظار میں بیٹھا ہوں کریں. یہاں. اس پہ کوئی آرگومنٹ ہے ہی نہیں. عجیب تماشا ہے یار یہ والا. بھی تم اپنے قابر کے لیے عزت کے لفظ لیتے ہو تو نہیں، یہ تو آپ لوگ نہیں، تماشا آپ لوگوں نے بنایا ہے احمد صاحب. یہ تماشا تھا نہیں، یہ آپ لوگوں نے جان بوجھ کے بنایا ہے. آپ لوگوں نے اب یہ بھاگنے کا راستہ بنا لیا ہے کہ جب آپ لوگوں کے پاس جواب نہیں نہ ہوتا تو آپ لوگ 5 بار اس کے مرزا قادیانی کے نام کے ساتھ لگاتے ہو صاحب کے لا کے کہ اگلا بندہ اس کے اوپر لعنت ڈالے اور پھر ہم بھاگ جائیں. یہی سمجھ لو، یہی سمجھ لو آپ
यहाँ पे कोई हिंदू आएगा नहीं, समझ और गया, वो हकीकत अपने ये है। किसी एक काबर के बारे में अब कोई बहुत इज्जत के लफ्ज इस्तेमाल करेगा, उसको पूरी इजाजत है, मैं बुरा नहीं कहूंगा। अजीब तमाशा यार। और ये हमारा अकीदा है, ये अकीदे में किस दिन शामिल हुई बात, कैसे हो गई? सब हमारा भी फ्रॉडबाजी अकीदा है ना, सब कज़ाबूना फ्रॉडबाजी है, सब सलासूना हमारा भी फ्रॉडबाजी। अकीदा है। ये फ्रॉड है, ये अकीदा नहीं है, ये फ्रॉड है। अपने दिल का गंद और निकालने का बहाना रसूलुल्लाह की है। हदीस है, फ्रॉड नहीं है। मैं रसूलुल्लाह कह रहा हूँ ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ्रॉड कौल है, है। अपने दिल का गंद झूठ। निकालने की सिर्फ ये एक गंद उज़र तो आप निकाल रहे हैं, ज़िशान रहमत साहब, भाई, ये रसूलुल्लाह की बात नहीं हदीस हो को आप सकती। फ्रॉड कह रहे हैं। बात नहीं हो सकती। अगर आपने यही उसूल बनाने हैं, नहीं हो सकती बात, कोई शौक नहीं बात करने का, जा सकते हैं। नहीं ना, मोहम्मद इसके साहब, ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज मुझसे फिर हम भी नहीं कर बात सकते ना। अगर आप नहीं बात इनको हो सकती म्यूट तो हम करें। आपकी मिन्नत थोड़ी करते हैं। मोहम्मद साहब, दोस्त फैसला करेगा, आप जो होगा म्यूट कर लेंगे रखें। हम बात। हमें बात करने दें, ठीक है? आप म्यूट करें अपने। ठीक है जी, आप ये किसी जो में आपने क्या करे, मैं मेरे से मैं बात ये अर्ज करेंगे? कर रहा था कि ये जो बेबुनियाद बातें करते हैं ना, ये है ही खिलाफ इस्लाम है। मसलन अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ईसाइयों पर लानत डाली है इस वजह से कि उन्होंने अल्लाह ताला का बेटा बना लिया है। अब ये कहते हैं कि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम ने क्यों उनको बुरा भला कहा है, क्यों उनको बुरा कहा है, उनके मजहब को बुरा कहा है कि वो जो है बेबुनियाद एक गलत चीज़ दुनिया में फैला रहे हैं। हुजूर ने बिल्कुल इस्लाम का दफा किया है और ये बात फैलाई है कि ये गलत चीज़ फैला रहे हैं दुनिया में जो खिलाफ इस्लाम है। मसलन अपनी जो बुनियाद ये रखते हैं कि यीशु खुदावंद है, यानी वो खुदा का बेटा है या खुदा है, वो बेबुनियाद है, ना असल उसकी खुदा से मिलती है। खुदा ताला ने कोई ऐसी वही नाज़िल नहीं की किसी पे, और ना ही हजरत मसीह इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ने कोई ऐसा दावा किया है। तो जब ये दोनों बातें साबित ही नहीं, हजरत मसीह अलैहिस्सलाम का दावा ही सिर्फ अपने नबी होने का है, तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि ये जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक ऐसी बातें करते हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक कहीं भी हजरत मसीह अलैहिस्सलाम ने कोई कलमा ऐसा नहीं कहा, बल्कि आपने हमेशा तारीफ की है उनकी, ठीक है? बड़ी सिंपल सी बात है शहजाद भाई, अगर इनकी बातों में कोई सच्चाई हो, सदाकत हो, तो अहमदी भी ये चीज़ करते नजर आते हो। एक दुनिया में एक भी नहीं मिलेगा, तो ये सब बहाने हैं। आई डोंट नो, पता नहीं किस दिन समझ आएगी इनको। मुझे 2 मिनट दे जरा।